Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. And today's video is the most awaited video from all of you guys, which is about BTech Biotechnology. I've been getting tons of messages, emails and comments on my videos regarding this. So I would like to address this all for once, and I would like to clear all the doubts that I've got in past week and month about it, because I think at this point of time everybody of you are getting admissions into colleges, and that's the reason why most of you are figuring out options for you. And one thing I would like to tell everybody of you is that please get some counseling. You're referring to my video, which is fine. I'll give you most of the details that you need, but definitely I'll suggest you that if you want to get into something very specific and it has a very specific niche, then I would suggest please counseling लो, so that you get through all of that once and for all. और आपका क्योंकि counselors help you वो guide through it and even they make the process easier for you, तो आपके लिए वो भी चीज़ हो जाएगी. Because the counselor I got helped me through my admissions, through my scholarships जो भी मुझे मिलनी चाहिए थी, and even helped me select the best college out of the list of colleges I had. तो मैंने खुद भी research करी थी, and I would suggest कि आप लोग भी research करो please थोड़ा सा, क्योंकि research will help you land on the page where you are wanting to go. It'll help you with the location, first of all, the quality education, the amount of effort that takes. It'll also help you ये जानने में कि आपके कोर्स के करिकुलम में क्या क्या है. So I think that's one thing I would suggest. Everybody is actually researching, तभी वो videos देख रहे हैं, they're looking up for video because it has the title of BTech Biotechnology and you know you're getting guided through it. But then also I would suggest कि please aside of this भी आप अपना जो भी आपकी I'm telling you about the filters that you need to add for your college, वो आप apply करो. ना कि like everybody is asking me कि please tell me your college, please tell me your college, please refer आप कहाँ से पढ़ रहे हो. देखो honestly बताऊँगी मैं आप लोगों को ये चीज़ कि I can refer to my college. मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्या है कॉलेज का नाम, and even I can get you guys admitted to it. मुझे हर किसी की admission पे डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी फीस पे concessions मिल जाएंगे, but that's not what I want. ठीक है, मेरे को एक्चुअली कंसर्न ये है यहाँ पे कि एक सेफ्टी कंसर्न आता है when I'm telling someone where is my college, because आप लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हो, मे बी आप लोगों को पढ़ना हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप 1-on-1 मुझसे मिलना चाहते हो या ऐसा कुछ है, और आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बिकॉज आपको लग रहा होगा ओके वर्थ इट है, कोई और भी कर रहा है तो यू लुकिंग अप टू मी. बट देन ऐसे कई लोग हैं जिनको ना कि सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ, ओनली बिकॉज यू नो एनीबडी. यार आजकल किसका दिमाग किस तरीके चल रहा है वी कैन नॉट गारंटी. सो आई एम नॉट सेफ अबाउट I'm not feeling the safety about telling where I study. So please do not force me on this, because I've got multiple emails कि please बता दो, please बता दो, please बता दो, and even after denying to it they would keep on compelling me to tell it. So please maintain this integrity between you and me, वरना मैं अपने कॉलेज घर में डालना बंद कर दूंगी. and then I don't think because लोग फॉलो तो तब भी कर लेंगे जिन्होंने करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे जिनको मेरी वीडियोस देखनी है, मुझे देखना है, but then I'll not add any detail about my education. I'm sharing it so that everybody gets an insight, and किसी को अगर ये कोर्स करने से कुछ फायदा हो या किसी को कोई गाइडेंस मिल रही हो बिकॉज स्टक है नीट के बाद and all of that, तो I'm making it for that. So please keep it till there. I'm suggesting you the names of the colleges on email. Definitely I'm doing that. ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को बेस्ट कॉलेजेस के नाम नहीं बता रही हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन दैट. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस जो मैंने सबसे ज़्यादा सुने हैं एंड जिनको मेरे को लगता है कि आई थिंक आई शुड एड्रेस दोज क्वेश्चंस सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गेट अवेयर अबाउट हाउ टू डू इट और क्या क्या प्रोसेस है हर चीज़ का. दिस वीडियो इज़ वन सोल्यूशन फॉर यू, जिस पर आप जाके लेजिट ट्रस्ट कर सकते हो हाउ टू गो अबाउट this process. Okay, so let's just start with that. So the first question which is mostly asked is where should we go and study, like which is the best college. तो देखो इसके लिए कोई specific college नहीं है कि आपको यही college बढ़िया रहेगा या क्या है. I'll say ये अभी गवर्नमेंट में नहीं आया है. सो जो चीज़ अभी गवर्नमेंट में नहीं आई होती है वो ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए उनको पहले तो ट्रेंड लोग चाहिए टू
एजुकेट पीपल, ठीक है। और वो जनरेशन हमारी है, वो ईयर्स हमारे हैं जिसमें हम एजुकेट हो रहे हैं, हम ट्रेन हो रहे हैं ताकि हम आगे जाके और लोगों को इस कोर्स के बारे में बता सकें ना। अब कई लोग का डाउट है कि क्यों ये अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो क्या पता है वैल्यूबल ना हो। नाउ लुक एट द फैक्ट कि BSc इन बायोटेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट थ्योरी। मैंने अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोली है कि BSc बायोटेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट थ्योरी एंड B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या पता इसमें ना फ़ायदा हो, आगे जाके हम अटक जाएं। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट। आप पहले ही नेगेटिव सोचते जाओगे तो बात अलग है कि यू डोंट वांट टू लुक एट द अदर वे अराउंड, तो दैट विल बी टोटली अपॉन यू। बट जो चीज़ गवर्नमेंट में नहीं आई होती है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि मोस्ट पीपल आर नॉट एक्सेसिबल टू इट। उन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है अभी। तो जिनको नॉलेज नहीं है दे आर डूइंग BSc फॉर नाउ, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे गवर्नमेंट से भी मिल रहा था ये कोर्स, बट BSc मिल रहा था, B.Tech नहीं मिल रहा था। B.Tech इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स। आप कभी भी B.Tech कर रहे हो, इट्स इंजीनियरिंग, इट्स इंटीग्रेटेड कोर्स। BSc इज़ नॉट एन इंटीग्रेटेड कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब गवर्नमेंट में अभी टाइम लगेगा ये कोर्स आने में, धीरे धीरे आएगा। जब तक आएगा तब तक जॉब अवेलेबिलिटीज़ ऑलरेडी है मार्केट में। तो जब जॉब अवेलेबिलिटीज़ हैं और लोग नहीं हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं लोगों के पास। अब ये रिसर्च में भी बढ़ जाती हैं, इंडस्ट्री लेवल भी बढ़ जाती हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, इंडस्ट्री लेवल होते हैं, कमर्शियल लेवल होते हैं, एज वेल एज आपको कंप्यूटेशनल होती है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। यू लर्न कोडिंग अलॉन्ग साइड दिस, तो उसमें भी इट कैन हेल्प यू। तो आई थिंक ये चीज़ तो मैंने आपकी क्लियर कर दी कि वाई इज़ इट नॉट इन गवर्नमेंट येट, और क्या ये मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कौन से कॉलेजेस बेटर हैं। द ओनली वन गवर्नमेंट कॉलेज आई नो, बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने रिसर्च दिल्ली के हिसाब से ही करी है एंड मोस्टली ये चीज़ें हैं भी दिल्ली में। तो द वन गवर्नमेंट कॉलेज आई नो विच इज़ नॉट गवर्नमेंट एट ऑल, विच इज़ सेमी गवर्नमेंट, विच इज़ IPU, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी। आप सबने सुना होगा। उसके अपने पर्सनल पेपर्स होते हैं, वो अपने खुद के पेपर्स कंडक्ट करता है। उसकी डेट्स जा चुकी हैं, वो पेपर्स हो चुके हैं, तो अब उसको बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। जिन लोगों ने उसमें भरा था उनको मिल जाएगी B.Tech बायोटेक्नोलॉजी की सीट उसके ऊपर। वहाँ पे बहुत लोग भरते हैं एवरी ईयर एंड लिटरली हम भी गए थे वहाँ पे लेटर एडमिशन्स का पता करने के लिए, बट वहाँ लेटर एडमिशन्स नहीं होते हैं। सो डोंट थिंक ऑफ इट कि अभी हम प्राइवेट में लेते हैं, आगे जाके हम लेटर एडमिशन गुरु गोबिंद सिंह में ले लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ वन गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वो भी, जिसका यू कैन गेट दिस कोर्स इन टू। बाकी और कहीं नहीं है, वो भी द्वारका वाली ब्रांच में है और कहीं नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्राइवेट कॉलेजेस, ये सारे प्राइवेट में हैं। तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें ये अवेलेबल है कोर्स। उसमें यू हैव शारदा यूनिवर्सिटी, यू हैव NIET, डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, Amity यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज, बेनेट, ILM यूनिवर्सिटी। सो वी हैव अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। इट इज़ ऑल्सो देयर इन अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि दिल्ली के बाहर भी हैं। दिल्ली में भी और यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें हैं। अभी आई गेट बैक टू, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा अगर मुझे और यूनिवर्सिटीज़ का पता लगता है। जितनी मुझे पता थी मैंने डाल दी सारी की सारी। अब एक बात है कि B.Tech बायोटेक्नोलॉजी भी है, B.Tech बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है और B.Tech फूड टेक्नोलॉजी भी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बस उसका भी एक मेल आया था। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ मोर कोडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोर थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो आपको इसमें ये डिफरेंस है। आपको इसमें कोडिंग सीखनी होगी, काफ़ी ज़्यादा पाइथन वगैरह है, तो वो सब है, जावा, पाइथन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। और बायोटेक्नोलॉजी में दिस इज़ द अदर पिक्चर अराउंड, लाइक इफ़ यू सी इट, तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोर अबाउट experiments and discoveries and all of that. Bioanalytics is more about data collection and data sorting and then all of that. वो एक चीज़ हो जाती है। Now people are asking me about placements कि दीदी प्लेसमेंट्स लगेंगी नहीं लगेंगी, या what do you think of placements, आप लोग की सीनियर्स की लगेगी नहीं लगी। देखो placements is very tentative। आप किस तरीके से क्या करते हो ये उस पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और की लगी थी या नहीं लगी थी। Simple as that. This is the one answer I have for everybody who's asking me about placements. आप क्या करते हो अपने कॉलेज लाइफ में, इस पर डिपेंड करती है आपकी प्लेसमेंट्स। नहीं तो प्लेसमेंट सेल्स, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो ज़्यादा प्लेसमेंट्स करवाते हैं बिकॉज उनको अपनी रेपुटेशन बनानी होती है मार्केट में। उनके पास तो प्रॉपर प्लेसमेंट सेल होता है जो वर्किंग होता है, प्लेसमेंट सेल होता है जो वर्किंग होता है। गवर्नमेंट में तो एक बार फिर भी आपको होता है कि यार प्लेसमेंट सेल वर्किंग नहीं होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ का तो लिटरली गवर्नमेंट में तो यू हैव टू सर्च फॉर योर सेल्फ। इन कैंपस प्लेसमेंट्स होती ही नहीं है उतनी जितनी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं।
तो उनको चाहिए कि उनकी रेपुटेशन बढ़ती जाए मार्केट में, तो वो तो जानकर ज़्यादा लोग बुलाते हैं, ज़्यादा कंपनीज बुलाते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कैंपस प्लेसमेंट को पिच कर क्रैक कर पाते हो या आउट कैंपस प्लेसमेंट को आप खुद से करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो। लोग बहुत कुछ करते हैं आफ्टर डूइंग दिस। सो दिस अगेन इज़ वेरी 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 टेंटेटिव। होती हैं प्लेसमेंट्स, मेरे सीनियर्स की हुई हैं। अ क्लियर आंसर टू एवरीबडी इज आस्किंग, मेरे सीनियर्स की हुई हैं और मेरे कॉलेज में तो काफ़ी अच्छी हुई हैं। मतलब जैसे तुम एक स्टार्ट के लिए एवरेज मानते हो उतनी हुई हैं, 12 लाख की, 14 लाख की। इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ माई सीनियर्स अभी उनकी 24 लाख की लगी है, तो होती हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्स ज़रूरी है या नहीं। तो मैथ्स इज़ देयर इन 1 सेमेस्टर। मेरा 2nd सेमेस्टर में था, तुम्हारे कॉलेज में कौन सेमेस्टर में होता है पता नहीं है। सबके टेंटेटिवली अपने अपने हिसाब से होती है, किसकी किस सेमेस्टर में होती है, किसी के किस सेमेस्टर में होती है। मेरे कॉलेज में 2nd सेमेस्टर में थी एंड ट्रस्ट मी उसमें इंटीग्रेशन थी, डिफरेंशिएशन थी और बेसिक कैलकुलस था, अलजेब्रा था। तो आई वुड से हाँ है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, ढंग से करोगे हो जाएगा। मेरे से हो गया, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी मुझसे हो गया। एंड आई एम समवन जो 8th क्लास से मैथ्स को हेट करता है, तो अगर मुझसे हो गया आई थिंक तुमसे हो जाएगा। मेरे को 8th क्लास के बाद कभी मैथ्स अच्छी लगी ही नहीं। सबसे ABCD आया मैथ्स के अंदर, XYZ, फाइंड X, फाइंड Y। क्यों ढूंढूँ मैं, खुद ढूंढ ले अपना X। तो तब से मेरा इनसे नाता टूट चुका है, बट मैंने कर लिया, विच मीन्स तुम भी कर लोगे। मतलब आई टेक माई सेल्फ एज द ग्राउंड लेवल पर्सन, जिसको तुम एज अ क्या बोलते हैं, तुम उसको कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो टाइप्स। मतलब इस चीज़ में, मैथ्स में स्पेसिफिकली। तो मैथ्स मेरी बहुत ही गंदी थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स को थोड़ा लगता भी था कि, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे घर में सारे ही कॉमर्स वाले हैं, सब ने ही CA करी है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इन माई फैमिली CA या फिर they're doing something related to accountant। तो मतलब कहीं ना कहीं जाके सारे के सारे कॉमर्स में ही अटक जाते हैं। मैं नहीं थी ऑन द अदर हैंड, तो मेरे पेरेंट्स थोड़े से वहाँ डिसअपॉइंटेड थे एंड व्हाटएवर। अब फ्यूचर क्या है, जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, बता दिया मैंने। इंडस्ट्री में है, रिसर्च में है। जॉब पर्सपेक्टिव तो, और आप क्या क्रैक कर लेते हो या आपके ऊपर है, आप कितना आगे क्रैक कर सकते हो या आपके ऊपर है। अब भगवान जाने मैं क्या क्रैक करूँगी, बट आई एम होपिंग कि मैं भी कर लूँ अच्छा पैकेज क्रैक। सो लेट्स होप फॉर दैट। सैलरी क्या होती है, दैट इज़ अगेन टेंटेटिव। कई बार देखो यार, ऑनेस्टली बताऊँ, डॉक्टर्स की भी फ्रेशर सैलरी तो 25,000 रुपये ही होती है, एंड आफ्टर 5 ईयर ऑफ डिग्री 25, 30, 50 वो डिपेंड करता है। तो हम तो फिर भी लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इज ओवर डॉक्टर्स। मेरे को लिटरली हमारे टीचर्स ने यही बोला है, हमारे टीचर्स जो बिकॉज दे आर वर्किंग इन रियल टाइम, मतलब जो जितने मेरे टीचर्स हैं आर एक्चुअली साइंटिस्ट राइट नाउ। तो एवरी टीचर हैज सेड दैट कि तुम ये फिक्र मत करो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इनफैक्ट हम जो इंजेक्शन बनाते हैं तब जाके डॉक्टर लगाता है, तो उस चीज़ को तुम ट्रस्ट करो कि जो चीज़ तुम शुरू करोगे वो जाके डॉक्टर आगे कंटिन्यू करेगा। अगर तुम इंजेक्शन ही नहीं बना के दोगे, कोविड टाइम पे इंजेक्शन किसने इन्वेंट करे, साइंटिस्ट राइट। कि कौन थे वो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ये लोग थे। ठीक है, तो अगर तुम इन्वेंट नहीं करोगे तो लोग नहीं लगा सकते हैं। सो डोंट थिंक कि तुम डॉक्टर से कहीं कम हो, तुम डॉक्टर से ऊपर हो इनफैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओके, अनदर क्वेश्चन विच आई हर्ड अ लॉट, क्लियर हो गया। अब PCM भी नहीं थी, PCB थी, बता दिया। मैथ्स बहुत बेसिक लेवल की है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अब ये तुम्हारे करिकुलम पे डिपेंड करेगा। थिंक बिफोर टेकिंग योर एडमिशन, अच्छे से पता करो कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, उनके पास कितने मेजर्स हैं, कितने माइनर्स हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे, सब पता कर लो। इसीलिए कह रही हूँ काउंसलर कर लेना, काउंसलर हायर कर लेना, दे विल हेल्प यू अ लॉट। आई स्वेयर मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं काउंसलर पे, इनफैक्ट उसने मेरी फीस कम कराई थी। तो आई सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़, मतलब अगर मैंने काउंसलर को 500 रुपये दिए या 1000 रुपये दिए, तो उसने मेरी 10 से 20,000 रुपये फीस बचाई है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, उल्टा अच्छी ही है, क्योंकि उनको भी क्रेडिट्स मिलते हैं उस चीज़ के एडमिशन कराने के, और तुम्हें भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि तुम उनके रेफरेंस से जा रहे हो। तो रेफरल हमेशा मैटर करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि दीदी हमारा नीट नहीं हुआ था, तो अब हम क्या करें, मतलब लाइक हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो भाई, अब मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि जिस बंदे ने मुझे ईमेल किया था उसने कहा था नीट फेलियर हूँ मैं। फेलियर नहीं हो तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकाल दो दिमाग से, ठीक है।
मैंने अपने आप को सोचा था एक टाइम पे, मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ फेलियर नहीं हो तुम। आई एम टेलिंग यू, किसी को नहीं पता वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, नो बडी नोज वट दे आर डूइंग। तो अगर तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट डू एक्सपेक्ट, यू आर 18 17 एंड अभी इस टाइम तुम अपनी लाइफ सॉर्ट कर लोगे एकदम से। तुम्हारे पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने अपना पहला घर कौन सी उम्र में लिया था। लाइक लेट्स जस्ट स्टॉप नॉर्मलाइजिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल देते हैं, सेकेंड ऑफ ऑल हमने ये नहीं किया इस उम्र में, ये नहीं किया। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पैसे भी नहीं कमा रहे थे, और जो कमा रहे थे वो इतनी बुरी हालत में कमा रहे थे, तो व्हाट्स द व्हाट्स रॉन्ग विद एंजॉइंग द लग्जरी दैट दे प्रोवाइडेड यू। उसको कंज्यूम करो, मैं ये नहीं कह रही वेस्ट करो, कंज्यूम करो, अच्छी चीज़ों को करने की कोशिश करो। और हर इंसान डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता यार, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन बॉदरिंग योर सेल्फ अबाउट दिस कि यार मुझसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करो अब, ठीक है। और इंजीनियरिंग भी नहीं होगी तो कुछ और कर लेना, बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। तो एवरेज अब फिर एक ये था कि एवरेज स्टूडेंट कोप अप कर सकता है केमिस्ट्री फिजिक्स से। फिजिक्स केमिस्ट्री वही है जो 12th में थी, 11th में थी, नथिंग मोर। मेरी केमिस्ट्री हो चुकी है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स हो चुकी है, थर्ड सेमेस्टर में मेरे फिजिक्स। तो अब फिजिक्स का तो मैं तुम्हें अगले 6 महीने बाद ही बता पाऊँगी, तब तक तुमने एडमिशन ले लिया होगा। तो फिजिक्स आसान है, मुश्किल नहीं है। जितना मैंने अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से पूछा है, देयर लाइक वही है जो 11th 12th में था। तो जो तुम्हारे पास बेसिक सब्जेक्ट्स पहले से थे, तुम उन्हीं को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ने वाले हो। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये वो लॉजी है, लॉजी करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। नहीं यार ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक इज कि दीदी हाउ डू वी बिल्ड अ करियर इन दिस एंड विल इट बी ईजी। देखो ईजी तो कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सोचो ही मत कि ईजी होने वाला है, कुछ भी ईजी नहीं होने वाला। तुम कुछ और करोगे लाइफ में वो भी मुश्किल होएगा, और ये सोच के चलोगे कि यार एक चीज़ में फेल हो गए तो आगे भी फेल होंगे, तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने दिमाग से ये चीज़ नहीं निकालोगे कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ गुड थिंग्स, तो बैड थिंग्स विल ओनली हैपन टू यू। मैं फॉर द लॉन्गेस्ट मैं इस लूप में रहती थी, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। चलो लेट्स से कुछ भी नहीं हो रहा, लाइफ पॉज पे खड़ी है, बट दिस विल पास टू। दिस नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। आज अगर बुरा दिन चल रहा है तो कल अच्छा दिन जाएगा, और कल अच्छा दिन है तो वो भी खत्म हो गया, बुरा दिन एक दिन जरूर आएगा। तो अगर ये उत्तर होगी कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये कोर्स, अब कई लोग पूछ रहे थे कि टेक्निकल कोर्स है क्या है, टू सम अप एवरीथिंग इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स। इफ यू गो फॉर दिस वन यू आर डेफिनेटली नॉट गोना रिग्रेट दिस, ठीक है। यू गोना लाइक इट, यू गोना लव इट एंड यू गोना गेट सक्सेस थ्रू इट। Don't worry, success will come to you today, tomorrow or the next year. It's gonna come. और तुम अच्छे से कोर्सेज करो, साथ साथ अपनी चीज़ें सीखो। जो भी तुम्हारे को टीचर्स समझा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेपर देना है आगे जाके GMAT देना है, सॉरी GMAT कह रही हूँ, बार बार GMAT कहती हूँ मैं इस चीज़ को, गेट देना है, कुछ और देना है, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। साथ साथ करते जाओ, जो भी तुम्हें समझ में आए उतना करते जाओ, लिखते जाओ, कुछ नोट्स कलेक्ट करते जाओ। टीचर्स की मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के कोई नोट्स डिलीट नहीं करे, मैं अपने सारे नोट्स संभाल के रख रही हूँ, सो दैट आई विल यूज़ इट व्हेन आई गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मुझे देना होगा तो। अभी मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं इन द मोमेंट लिव करना चाहती हूँ, तो आई एम जस्ट डूइंग थोड़ा बहुत इंटर्नशिप सोच रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है। तो जो मिला वो अच्छा है, जो नहीं मिला वो और अच्छा है। तो वट एवर इट इज़, मुझे सब यही बोल रहे हैं कि हाउ डू वी बिल्ड अ करियर इन दिस। डोंट वरी अबाउट द करियर, यू विल बिल्ड इट योर सेल्फ। नो बडी गोना टेल यू रोड मैप। ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता सक्सेस का, कभी भी ऐसा कोई कट शॉर्ट मेथड नहीं होता कि आप ये कर लो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी डिफिकल्टी है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तुम्हारे को ईमेल मेरी बायो में भी मिल जाएगी, इसके बायो में, और तुम्हें मैं अगर कोई मुझे नहीं मिल रही है, क्वेरी डालोगे तो मैं तुम्हें मैसेज करके, कमेंट का रिप्लाई करके भी बता दूंगी। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर टू रिप्लाई टू एवरीबडी पॉसिबल इन द लीस्ट टाइम। लोगों को कई बार विद इन 15 मिनट्स भी मैसेज मिले हैं, 5 मिनट भी मिले हैं, 10 मिनट भी मिले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर तुम मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हें विद इन 15-20 मिनट्स में रिप्लाई कर दूंगी। अगर कभी कोई नहीं होता है, मे बी समटाइम्स आई स्किप आउट समथिंग, तो आप दूसरी बार मैसेज कर दो। डोंट फील लाइक यू आर बॉदरिंग मी, यू आर नॉट बॉदरिंग मी। इस चीज़ में आई एम हेल्पिंग एवरीबडी। तो अभी मैं इन द मोमेंट लिव करना चाहती हूँ, तो आई एम जस्ट डूइंग थोड़ा बहुत इंटर्नशिप सोच रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है। तो जो मिला वो अच्छा है, जो नहीं मिला वो और अच्छा है। तो वट एवर इट इज़,
मुझे सब यही बोल रहे हैं कि हाउ डू वी बिल्ड अ करियर इन दिस. डोंट वरी अबाउट द करियर, यू विल बिल्ड इट योर सेल्फ. नोबडी गोना टेल यू रोड मैप. ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता सक्सेस का. कभी भी ऐसा कोई कट शॉर्ट मेथड नहीं होता कि आप ये कर लो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कोई भी डिफिकल्टी है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. तुम्हारे को ईमेल मेरी बायो में भी मिल जाएगी, इसके बायो में. और तुम्हें मैं अगर कोई मुझे नहीं मिल रही है, क्वेरी डालोगे तो मैं तुम्हें मैसेज करके कमेंट का रिप्लाई करके भी बता दूंगी. एंड आई ऑलवेज मेक श्योर टू रिप्लाई टू एवरीबडी पॉसिबल इन द लीस्ट टाइम. लोगों को कई बार विद इन 15 मिनट्स भी मैसेज मिले हैं, 5 मिनट भी मिले हैं, 10 मिनट भी मिले हैं. तो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर तुम मुझे कांटेक्ट करो मैं तुम्हें विद इन 15-20 मिनट्स में रिप्लाई कर दूंगी. अगर कभी कोई नहीं होता है, मे बी समटाइम्स आई स्किप आउट समथिंग, तो आप दूसरी बार मैसेज कर दो. डोंट फील लाइक यू आर बॉदरिंग मी, यू आर नॉट बॉदरिंग मी. ये चीज़ में आई एम हेल्पिंग एवरीबडी. एंड एज प्रॉमिस्ड कुछ दिनों में तुम्हारे पास सेकेंड सेमेस्टर की भी रिव्यू वीडियो आ जाएगी, रिव्यू वाली पूरी. मैं अभी सोच रही थी बनाने का, थोड़ा अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो आई वाज लाइक पुलिंग इट ऑफ कि अच्छा ठीक है बनाऊंगी. ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इतना. और जो तुम लोग मुझे रिप्लाइज करते हो या कमेंट्स करते हो या जो ईमेल पे तुम मुझे लिखते हो कि यू लाइक माई वीडियोज़ और एनीथिंग, आई एम रियली ग्लैड. और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज. कुछ भी पूछना हो पूछ लो. इस कमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी. बस मेरे कॉलेज का नाम मत पूछो, क्योंकि कृपया करके इतना आप अपने और हमारे बीच में इंटीग्रिटी रखिए कि ना तो आप ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करिए कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ ना, क्योंकि फिर देखो दिस विल इवेंचुअली लीड मी टू स्टॉप यूजिंग यूट्यूब. मैं बंद कर दूँगी. मुझे इतना कोई है भी नहीं, मैं सच बोलूँ. मुझे मज़ा आता था, मैंने बनाना शुरू कर दिया. जिस दिन मुझे लगेगा कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं या फिर कोई मुझे मतलब बिकॉज माई सेफ्टी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. तो अगर मुझे लगेगा कि यू गाइज आर आफ्टर मी, मैं बंद कर दूँगी वीडियोज़. सो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन दैट. मेरे को भी मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी मज़ा आ रहा है. प्लीज़ मज़े आने दो थोड़ा ज़िंदगी के. क्योंकि दिस इज़ वन थिंग, मैं यहाँ पे आके अपना, मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं यहाँ आके बोल सकती हूँ. सो और अप्रोप्रिएट बोल रही हूँ ताकि लोग को समझ में आए. पीपल आर वेरी फास्ट टू जज. कमेंट्स कर देते हैं बड़ी जल्दी कि बहुत ज़्यादा बोलती है, व्हाट डज शी थिंक फॉर सेल्फ. आई डोंट नीड योर कमेंट्स. यू आर लिटरली ब्लॉक्ड ऑन माई अकाउंट. सो प्लीज़ आप भी मुझे बार फोर्स ना करें. और जितना मैं आपको बता रही हूँ उतने में आप लोग खुश रहें. और आपको ज़्यादा जानना है आप मुझे ईमेल कर लीजिए रिलेटेड टू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. पर अब ये मत कहो कि यार हमारे बीच में रहेगा, आप मुझे प्लीज़ अपने कॉलेज का नाम बता दो. ना सॉरी, आई कांट डू दैट. दैट इज़ लिटरली अगेंस्ट माई सेफ्टी. तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखो इस चीज़ का. एंड इतना मैं इस चीज़ को नहीं फोकस करना चाहती. अभी वीडियो वॉज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. मैंने आई थिंक सब कुछ बता दिया है, कोर्स से रिलेटेड, स्कोप से रिलेटेड, आपके कॉलेजेस के हिसाब से. एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो वो भी मत करना कि हम अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं वहाँ से पढ़ लेते. कुछ मत पढ़ो, अभी ये टाइम एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो अच्छे से क्या करना है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स करनी है, बायोटेक्नोलॉजी करनी है, फूड टेक्नोलॉजी करनी है, या बायो से रिलेटेड कोई और कोर्स करना है. हज़ारों है मार्केट में. सो गो फॉर वट एवर यू लाइक. एंड आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप यू ऑल लव दिस व्लॉग नहीं वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.